बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इज टुडेज टॉपिक इन विच यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड. Size reduction, size enlargement and separation of material are included in unit operation, and then polymerization, emulsion polymerization, alkylation and hydrolysis are included in unit processes. Equipments for size reduction are jaw crusher and ball mill. Jaw crusher and ball mill. Equipments for size enlargement are pellet mills, tumbling agglomerator and drum agglomerator. And the separation of material through magnetic material, thrust flotation and fractional distillation. So in this video, we only discuss size reduction. What is industrial process? Industrial process are those processes in which we get desired product formed from a variety of starting raw material using energy through a succession of treatment steps integrated in a rational fashion. अब वो जो स्टेप हैं वो फिजिकल या केमिकल कुछ भी हो सकते हैं. हम फिजिकली भी कन्वर्जन कर सकते हैं और केमिकली भी कन्वर्जन कर सकते हैं. Process in which input we give input, then processing starts, transformation occurs, and we get output in the form of product. Layout for industrial process indicate, first of all, we pre-treated the raw material. Then we convert the material. When the material converted into product, into desired product, then we separate the product from other byproducts that are not required. Then we refine or purify the product, and at last, entry or exit point of services such as cooling water and steam. Next is unit that makes up a chemical processes are basically two: unit process and unit operation. So in this video, we only discuss about unit operation in which size reduction are discussed. There are many steps of chemical process that make up a global chemical industry. However, each may be broken down into a series of steps called a unit operation. Physical treatment or steps are included that are required to put the raw material in the form in which they can be react chemically. हमें रॉ मटेरियल को ऐसी हालत में रखना है, ऐसी फॉर्म में रखना है जिसमें वो केमिकली रिएक्ट कर सके. और सेकेंडली, हमने प्रोडक्ट को ऐसे रखना है, उस फॉर्म में रखना है जो कि मार्केट के लिए सुटेबल हो. एग्जांपल्स हैं यूनिट ऑपरेशंस की: एजिटेशन, एटमाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्लासिफिकेशन, क्रशिंग, डिकेंटिंग, dispersion, distillation, evaporation, filtration, floating, gas absorption, heat transfer, humidification, mixing, pumping, settling, and size reduction. ये सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे हैं यूनिट ऑपरेशन. Size reduction starts. Size reduction means we reduce the particle size. We broke the particle. Size reduction refers to all the way in which particles are cut or broken into smaller pieces. Basically, objective is to produce small particles from a big one for any following reasons. Reasons are
to reduce the chunks of raw material to workable size. Because in large size work is not possible. So like crushing of mineral ore to increase the reactivity of material. Basically, size is directly proportional to the size. Size is directly proportional to the reactivity. When we increase the reactivity of material by increasing the surface area, to increase the reactivity of material by increasing the surface area. Okay, to release the valuable substance so that they can separate it from unwanted material. To reduce the bulk of fibrous material for easier handling. To meet standard specification on size or shape, to increase particle in number for purpose of selling, to improve the blending efficiency of formulations, composites, insecticide, paints. Principle of size reduction. Principle of size reduction are size reduction machine based on mechanical compression और impact. जो साइज रिडक्शन मशीन्स होती हैं वो बेस करती है मैकेनिकल कंप्रेशन पे या फिर इम्पैक्ट पे. जब सॉलिड को रखा जाता है टू प्लेन्स के दरमियान और प्रेशर अप्लाई किया जाता है, एक प्लेन पे दो प्लेन्स के दरमियान में रखा जाता है सॉलिड को, जिसको हमने साइज रिड्यूस करना है, जिसका उस पर हमने प्रेशर अप्लाई करना है वन प्लेन पे. जो सॉलिड होगा वो फ्रैक्चर होगा, ब्रेक होगा फ्रैगमेंट्स में और प्रेशर रिमूव हो जाएगा. जब प्रेशर रिमूव होगा तो हमारे पास वो जो सॉलिड सब्सटेंस था वो फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. द फ्रैगमेंट्स फॉर्म्ड आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. अब जो भी फ्रैगमेंट्स बनते हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं. एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट दैट इज बेस्ड ऑन कंप्रेशन इज अ जॉ क्रशर. जो कंप्रेशन पे बेस करता है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट वो होता है जॉ क्रशर. और हम सबसे पहले जॉ क्रशर पढ़ेंगे और उसके बाद हम बॉल मिल पढ़ेंगे. इम्पैक्ट इज ब्रेकिंग अप ऑफ मटेरियल. अब कंप्रेशन तो मैंने आपको बता दिया कि हमने प्रेशर अप्लाई करना है. अब इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ मटेरियल व्हेन इट इज हिट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ हाई स्पीड. अब एक चीज ने ब्रेक होना है और वो कैसे ब्रेक होगी? जब वो हिट करेगी उस ऑब्जेक्ट के साथ जो कि मूव कर रहा होगा कांस्टेंट एंड हाई स्पीड पे. प्रोडक्ट जो होगा वो उस कंटेन क्वार्ट्स एंड फाइन पार्टिकल, उसके पास काफी सारे टुकड़े वगैरह होंगे या फिर कोई इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी. बॉल मिल जो है वो बेस करता है इम्पैक्ट पे. देयर आर टू टाइप ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पस. फर्स्ट इज जॉ क्रशर एंड सेकंड इज बॉल मिल. अब जो जॉ क्रशर है वो तो कंप्रेशन पे बेस्ड करता है, लेकिन जो बॉल मिल है वो इम्पैक्ट पे बेस करता है. तो आगे देखते हैं. What is jaw crusher? Jaw crusher is an equipment used for size reduction. Jaw crusher consists of a vertical fixed jaw and another swimming jaw that moves in a horizontal plane. In this diagram, आपको डायग्राम दिखाती हूँ. ये देखें, एक फिक्स है और एक जो है ये मूव कर रहा है. ये फिक्स है और ये मूव कर रहा है. ठीक है. ये वाला मूव करेगा, ये ऊपर से मूव करेगी तो ये मूव इधर से इधर टू एंड फ्रो मोशन. द जॉ आर रेड कलर. ठीक है. ये जो दो जॉज हैं ये रेड कलर के हैं. द टू जॉज मेक 20 to 30 डिग्री एंगल बिटवीन देम. इन दोनों के दरमियान में 20 to 30 डिग्री एंगल होता है. अब जो स्विमिंग जॉ होता है वो क्लोज हो जाता है 250 to 400 टाइम्स पर मिनट. अब वो एक मिनट में 250 to 400 टाइम्स क्लोज होता है. ठीक है.
जो भी फीड है हमारी, जो जिसको भी हमने क्रश करना है, उसको एडमिट की जगह बिटवीन द जॉस, उसको जॉस के दरमियान में हमने रखना है, जहाँ पे हमने बीच में रख देना है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इट इज क्रश सेवरल टाइम बिटवीन द जॉ। तो हमने कहा है, ऊपर मैंने आपको बताया कि ये जो जॉ है ये 250 टू 400 टाइम्स पर मिनट क्लोज होता है, क्लोज ओपन होता है। तो जैसे ही बीच में हम जो भी मटेरियल है, हमारी फीड है, हम वो रखेंगे तो वो तो क्रश हो जाएगी अच्छे से। बिटवीन द जॉज बिफोर इट इज डिस्चार्ज एट द बॉटम ओपनिंग। तो ये बॉटम ओपनिंग पे जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाती, आ जॉ क्रशर प्रोड्यूसेस आ क्वार्ट्ज प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमें एक प्रोडक्ट दे देता है। नेक्स्ट है बॉल मिल। अब बॉल मिल क्या करती है, बॉल मिल बेस्ड होती है इम्पैक्ट पे, जहाँ पे हमने कहा था कि कांस्टेंट स्पीड होगी और हाई स्पीड होगी और वो मटेरियल हिट करेगा। बॉल मिल इज टम्बलिंग मिल जनरली यूज फॉर प्रीवियसली क्रश्ड मटेरियल। जो कि पहले क्रश्ड हो गया था उसके लिए यूज होती है। अब ये जनरली यूज होती है टू ग्राइंड मटेरियल 6 मिलीमीटर एंड फाइनर। अब ये 6 मिलीमीटर या फिर उससे भी ज्यादा फाइन पाउडर बना देता है, डाउन टू द पार्टिकल साइज ऑफ 20 to 75 माइक्रोन। बिल्कुल छोटा साइज हो जाता है इनका। द मिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्टील ग्राइंडिंग बॉल्स एंड फीड। ये जो मिल है, बॉल मिल है, वो कंसिस्ट होती है सिलेंडर पे, जिसमें मिक्सचर होता है लार्ज और स्मॉल स्टील ग्राइंडिंग बॉल्स का, और फीड होती है उसके अंदर। When the cylinder is rotated, जैसे सिलेंडर रोटेट करेगा, अब जो रोटेशन होगी वो कॉज करेगी बॉल टू फॉल बैक इनटू द सिलेंडर एंड ऑन टू द मटेरियल टू बी ग्राउंड। अब जो रोटेशन है वो यूजुअली होती है 4 to 20 रेवोल्यूशन पर मिनट, डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर ऑफ मिल। अब ये डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ मिल पे। अगर डायमीटर ज्यादा है तो ज्यादा ज्यादा रेवोल्यूशन होंगी, डायमीटर कम है तो कम रेवोल्यूशन होंगी। द लार्जर डायमीटर द स्लोअर द रोटेशन। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर डायमीटर ज्यादा है तो रोटेशन स्लो होगी, लेकिन अगर डायमीटर कम है तो रोटेशन ज्यादा जल्दी होगी। अगर स्पीड मिल की बहुत ज्यादा है, टू ग्रेट, इट बिगिंस टू एक्ट लाइक अ सेंट्रीफ्यूज। और ये सेंट्रीफ्यूज की तरह है, जैसे कि हमारा वॉशिंग मशीन ड्रायर होता है, या फिर स्पिनर होता है, या फिर जूसर ब्लेंडर मशीन्स होती हैं। And the balls do not fall back, but stay on a perimeter of the mill. The point where mill become a centrifuge is called critical speed. Ball mill usually operates at 65 to 75 percentage of critical speed. तो ये आपने स्पीड याद रखनी है। ये देखें, ये स्टील बॉल्स हैं, ये पार्टिकल जिनको हमने ग्राउंड करना है, और ये एक स्क्रीन है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम साइज एनलार्जमेंट को डिस्कस करेंगे, एग्लोमरेशन को। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।